Namaskar. Myself Rajesh Evle. I welcome all of you to your YouTube channel Biology Evle Sir Online Classes. In this video lecture, we have to discuss Hershey and Chase experiment which confirm that DNA is the genetic material. Actually, before going to this experiment, we are studying the topic DNA as a genetic material. And in this topic, we have to discuss three experiments. The first one is the Griffith experiment. Second is the Avery, McCarty and MacLeod experiment. And the last is the Hershey and Chase experiment. Among these three experiments, we have discussed two experiments. The first experiment we have discussed Griffith experiment. In Griffith experiment, Griffith found that there is something which is transferred from heat-killed S strain to R strain and converted R strain into S strain. That something Griffith called as transforming principle, but Griffith didn't find out the nature of the transforming principle. Later, three scientists, Avery, McCarty and MacLeod, performed an experiment which proved that the nature of transforming principle suggested by Griffith was DNA molecule. But at that time, all the scientists were not convinced. Some of them thought that protein may be the genetic material. And these two scientists, Hershey and Chase, performed an experiment which confirmed that DNA is the genetic material. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को जो पार्ट स्टडी करना है that is the Hershey and Chase experiment which confirmed that DNA is the genetic material. Hershey and Chase experiment को स्टडी करने से पहले आपको एक चीज समझ लेना चाहिए. कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन ये था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है. तो इन टू साइंटिस्ट को क्या प्रूव करना था, क्या कंफर्म करना था? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है. तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इट मींस दैट टू कंफर्म whether DNA or protein is the genetic material, they used bacteriophages. Now the question is, what is the meaning of bacteriophage? The name indicates it may be bacteria. But remember one thing, bacteriophages are not bacteria. They are the viruses infecting bacterial cell. Bacteriophages क्या है? Viruses है जो viruses bacterial cell को infect करते हैं. Bacteriophages are the viruses infecting bacterial cell. They selected bacteriophages. And which type of bacteriophages they selected for their experiment? T2 phage. As far as the structure of the bacteriophage is concerned, it is very simple structure. डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे हम लोग. This is the protein coat. Inside this protein coat, डीएनए इज पैक्ड. और इस प्रोटीन कोट के अंदर उसका जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज द डीएनए विच इज पैक्ड. हर्शे एंड चेस को क्या करना है? उनको यह प्रूव करना है कि ये जो डीएनए है, डीएनए ही सेल में इंसर्ट होता है. अगर प्रोटीन इंसर्ट हुआ सेल में तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल. अगर डीएनए इंसर्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने इस तरह के टू बैक्टीरियोफेजेस फॉर्म किए. जो टू बैक्टीरियोफेजेस फॉर्म किए उसमें से एक बैक्टीरियोफेज ऐसा फॉर्म किया कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट आना चाहिए. और दूसरा
बैक्टीरियोफेज ऐसा फॉर्म किया कि जिसमें ये जो डीएनए है, डीएनए जो है वो डीएनए रेडियो एक्टिव आना चाहिए और डीएनए में रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट रहना चाहिए ताकि वो डिस्टिंग्विश कर सके कि रेडियो एक्टिविटी किस में प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव टू एलिमेंट्स कंसिडर किए। द फर्स्ट वन इज द phosphorus P32 and second is the sulfur S35. These are the two radioactive elements, isotopes used by Hershey and Chase for their experiment. Which are those two radioactive elements or radioactive isotopes? The first is the P32 and second is the S35. And remember one thing, इन्होंने ये 2 ही क्यों लिए, उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया, फॉस्फर और सल्फर को ही क्यों सिलेक्ट किया, उसके पीछे का रीजन क्या था देखिए। मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, अगर आपने डीएनए कंसीडर किया, दिस डीएनए कंटेन्स फॉस्फरस बट नॉट सल्फर, while protein contains सल्फर बट नॉट फॉस्फरस। ये जो डीएनए है उन्होंने मीडियम लिया, दिस मीडियम कंटेन्स रेडियो एक्टिव फॉस्फरस दैट इज P32। उन्होंने सेकंड पेट्री प्लेट ली, उसमें एक मीडियम बनाया, उस मीडियम में उन्होंने S35 लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। इस मीडियम में उन्होंने बैक्टीरियल ग्रोथ की और ये मीडियम में भी बैक्टीरियल ग्रोथ की। दे अलाउड बैक्टीरिया टू ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग P32 एंड इन अनदर प्लेट दे अलाउड बैक्टीरिया टू ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर दैट इज S35. Then they transfer these bacteriophages into both these mediums. ये दोनों मीडियम में, वन इज दी phosphorus containing, radioactive phosphor containing and another is radioactive sulfur containing. ये दोनों मीडियम में उन्होंने क्या ट्रांसफर किया, बैक्टीरियोफेजेस को ट्रांसफर कर दिए। इसके अंदर बैक्टीरियोफेज के आपको एक चीज पता है कि ये जो है इसका जो कोट है दिस इज प्रोटीन कोड और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। अगर बैक्टीरियोफेज को आप लोगों ने कंसीडर किया, प्रोटीन का एक कोट रहता है और एक प्रोटीन के कोट में उसका न्यूक्लिक एसिड, यू में से डीएनए इज देयर। ये P32 में जो भी बैक्टीरियोफेजेस ग्रो होंगे, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा। अगर जो रेडियो एक्टिव है, ये जो रेडियो एक्टिव है ना, इसको हम रेड कलर से इंडिकेट करेंगे, इसको भी रेड कलर से और इसको भी रेड कलर से इंडिकेट करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, P32 है, ये फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन प्रोटीन। अब S30 सल्फर कहां पे प्रेजेंट है, प्रोटीन में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है, डीएनए में एब्सेंट है। तो यहां पे जो भी बैक्टीरियोफेज मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे, तो देखो यहां पे एक बैक्टीरियोफेज मिलेगा, इसका कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव आएगा, डीएनए आएगा या प्रोटीन आएगा, कौन सा है, P32 है। फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है, तो कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव आना चाहिए, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव आना चाहिए। तो देखो किस तरह से होगा, ये बैक्टीरियोफेज है, इसका प्रोटीन नॉर्मल आएगा, इसका प्रोटीन का जो कोट है उसमें नॉर्मल आएगा, लेकिन इसका जो डीएनए है, दिस डीएनए इज रेडियो एक्टिव। किस तरह से रेडियो एक्टिव डीएनए आया, आपको समझ में आया। अब यहां पे देखिए, यहां पे मीडियम में क्या है, S35
रेडियोएक्टिव सल्फर है। रेडियोएक्टिव सल्फर किस में प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है या प्रोटीन में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन। तो यहां पर जो भी बैक्टीरियोफेज मिलेंगे, ये बैक्टीरियोफेज का कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव रहेगा? दिस प्रोटीन कोट इज रेडियो एक्टिव। ये जो प्रोटीन का कोट है, ये कोट कैसा रहेगा? रेडियो एक्टिव रहेगा, इस तरह से। और इसका जो डीएनए है, डीएनए इज नॉन रेडियो एक्टिव। क्यों डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है? डीएनए में क्या है? फॉस्फोरस है, सल्फर एब्सेंट है। लेकिन प्रोटीन्स में सल्फर प्रेजेंट है और फॉस्फोरस एब्सेंट है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, उनको क्या प्रूव करना था? उनको यह प्रूव करना था कि जो मटेरियल ट्रांसफर होता है, वेदर इट इज डीएनए और प्रोटीन, तो उन्होंने क्या कर लिया, और रेडियो एक्टिव डीएनए वाले और रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वाले बैक्टीरियोफेजेस उन्होंने ऑब्टेन कर लिए। यहां तक आपके समझ में आया? और एक चीज आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको प्रोटीन्स को आपने कंसीडर किया, यू नो दैट प्रोटीन्स आर द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, और इस पॉलीपेप्टाइड का ऑर्गेनाइजेशन होता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली अमीनो एसिड्स, and you have studied the classification of amino acids in 11th standard. In that part you may have studied sulfur containing amino acids. There are two amino acids, one is the cysteine and another is the methionine. Remember these two names. ये दो जो नेम्स है, सिस्टीन एंड मिथाइनिन, ये टू अमीनो एसिड्स के जो नेम्स है उसको अच्छी तरह से आप याद कर लेना, बिकॉज दीज आर द ओनली टू अमीनो एसिड्स। फर्स्ट इज द सिस्टीन एंड सेकंड इज द मिथाइनिन। ये जो टू अमीनो एसिड्स है जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये अमीनो एसिड दी सिस्टीन एंड मिथाइनिन आर दी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। अगर प्रोटीन में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आते हैं, इसलिए प्रोटीन में क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है, फॉस्फोरस एब्सेंट है। अब देखो, इन्होंने क्या कर लिया, ये बैक्टीरियोफेजेस डिजाइन कर लिए। वन टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, एक जो वन टाइप का बैक्टीरियोफेज है, इसमें क्या प्रेजेंट है? रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट है, और ये जो प्रोटीन है वो नॉर्मल है। सेकेंड टाइप का बैक्टीरियोफेज उन्होंने डिजाइन किया, उसमें प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी है और डीएनए कैसा है? नॉर्मल है। अब यहां से एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया हर्सी एंड चेज ने। वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या है, ये अब हम लोगों को पढ़ा। हर्सी एंड चेज डिजाइंड टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। द फर्स्ट वन इज रेडियो एक्टिविटी present in protein coat. रेडियो एक्टिविटी कहां पे प्रेजेंट है? प्रोटीन कोट में। डीएनए कैसा है? नॉन रेडियो एक्टिव है। लेबल भी कर देते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए, एंड दिस प्रोटीन इज द रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट, और यू में से प्रोटीन कैप्सिड। ये जो प्रोटीन कैप्सिड है, दिस इज द रेडियो एक्टिव एंड डीएनए इज नॉन रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव क्यों है? इसमें क्या प्रेजेंट है? यस 35। ये सेकंड बैक्टीरियोफेज में यहां पे कंसिडर करता हूं। ये जो सेकंड बैक्टीरियोफेज है, इसमें रेडियोएक्टिविटी कहां पे डेवलप की, किस तरह से उसको डिजाइन किया कि रेडियोएक्टिविटी कहां पे आना चाहिए? डीएनए में रेडियोएक्टिविटी आना चाहिए। तो ये देखो, ये हो गया रेडियोएक्टिव डीएनए। उसको लेबल कर देते हैं हम लोग, दिस इज रेडियो एक्टिव डीएनए। क्यों रेडियो एक्टिव है डीएनए? बिकॉज दिस डीएनए कंटेन्स रेडियो एक्टिव phosphorus P32 and the protein coat is
नॉन रेडियो एक्टिव। उनको ये फाइंड आउट करना है कि ये बैक्टीरियोफेजेस में से ये प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होता है या डीएनए ट्रांसफर होता है। क्योंकि जो बैक्टीरियोफेजेस उन्होंने सिलेक्ट किए थे, तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था व्हाट आर द बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस इन्फेक्टिंग द बैक्टीरियल सेल। इसका मतलब यह है कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस है ये किसको इन्फेक्ट करेंगे? बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे। अगर बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसके लिए एक छोटी सी मैं एक डायग्राम यहां पे बनाऊंगा, बाद में आगे जाऊंगा। सपोज दैट दिस इज द बैक्टीरियल सेल। अगर इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, इससे इन्फेक्ट किया और इससे इन्फेक्ट किया, तो क्या होगा? एक्चुअली बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन किस तरह से होता है बैक्टीरियल सेल को? ये इसको सबसे पहले इसको अटैच होता है, अटैच हो गया। अटैच होने के बाद इसमें से जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड इज इंसर्टेड इनटू दिस बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल में इसका क्या इंसर्ट होगा? न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट होगा। न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट होने के बाद ये जो प्रोटीन कैप्सिड है, प्रोटीन कैप्सिड रिमेन्स आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। ये जो प्रोटीन कैप्सिड है, ये प्रोटीन कैप्सिड सेल के बाहर रहेंगे और ये सेल में क्या इंसर्ट होगा? सिर्फ उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है, इट मे बी डीएनए और आरएनए, डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ वायरसेस वी आर स्टडिंग। You know that viruses contain either DNA और RNA as a genetic material। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल इस होस्ट सेल में इंसर्ट किया जाएगा। ओके, अब देखो, अगर समझ लो, अगर प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल है तो इसमें क्या इंसर्ट होना चाहिए? प्रोटीन इंसर्ट होना चाहिए। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इसमें क्या इंसर्ट होना चाहिए? डीएनए इंसर्ट होना चाहिए। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो किस में इंसर्ट होगा? ये जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल में, बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट होगा। अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन इंसर्ट हो जाएगा, अगर डीएनए है तो डीएनए इंसर्ट हो जाएगा। तो देखो, अब उनको फाइंड आउट क्या करना है कि ये बैक्टीरियल सेल में ये बैक्टीरियोफेज से क्या इंसर्ट हुआ। इसका मतलब ये है, ये जो सेल है, अगर सेल में रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिलता है, सेल में, बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिलता है, तो क्या हो गया? प्रोटीन, बैक्टीरियोफेज से प्रोटीन निकला और सेल में इंसर्ट हो गया। दैट्स व्हाई प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। अगर इस बैक्टीरियल सेल में डीएनए इंसर्ट हुआ, इट मींस दैट बैक्टीरियोफेज से क्या निकला? डीएनए निकला। ये डीएनए इसमें इंसर्ट होगा, इट मींस दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अगर इस सेल में रेडियोएक्टिव प्रोटीन मिला तो प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। अगर रेडियोएक्टिव डीएनए इस सेल में मिला तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। गॉट इट? अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंड करने में। तो देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं किस तरह से किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये बैक्टीरियोफेजेस लिए in which protein is radioactive which contain Yas35. The first step is that infection. अब इन्फेक्शन करना है तो क्या किया इन्होंने? देखो, इन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरियल सेल ली। सपोज दैट दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल को ये बैक्टीरियोफेज अटैच कर दिया। ये बैक्टीरियल सेल को क्या अटैच किया? यहां से अटैचमेंट दिखाएंगे। ये बैक्टीरियल सेल को इन्होंने क्या अटैच कर दिया? बैक्टीरियोफेजेस अटैच कर दिए। अब देखो, इसमें क्या प्रेजेंट है? उसका डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब देखो, ये बैक्टीरियोफेजेस से ये डीएनए निकला। दिस डीएनए इज इंसर्टेड इनटू दिस बैक्टीरियल सेल।
ओके। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या की, उसका ब्लेंडिंग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज द ब्लेंडिंग। दिस इज द न्यूक्लिक एसिड, इस बैक्टीरियोफेज का दिस इज द न्यूक्लिक एसिड ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज विच आर इंजेक्टेड इनटू दिस बैक्टीरियल सेल। अब क्या होगा, अब ये जो पार्टिकल्स है, प्रोटीन कोड्स है, दीज प्रोटीन कोड्स आर अटैच टू दिस बैक्टीरियल सेल। ये जो प्रोटीन कोड्स है, दिस प्रोटीन कोड्स आर अटैच टू दिस बैक्टीरियल सेल। अब उनको क्या करना है, ये प्रोटीन कोड्स ये बैक्टीरियल सेल्स को जो अटैच है उसको सेपरेट करना है। और ये सेपरेट किस तरह से करते हैं, उसको ये सेल लेना, उसको एजिटेट करना है, एजिटेट करके उसको ब्लेंडर से सेपरेट कर देना है। दैट मेथड इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। ओके, अब ब्लेंडिंग करने के बाद क्या हो जाएंगे, ये जो अटैच इसको बैक्टीरियोफेजेस है ये सेपरेट हो जाएंगे। ये बैक्टीरियोफेज यहां पे चला जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, इसको अटैचमेंट नहीं रहेगी। ये बैक्टीरियोफेज भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ओके, अब उन्होंने क्या किया, लास्ट स्टेप परफॉर्म की, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। फर्स्ट स्टेप इज द इन्फेक्शन, सेकेंड इज द ब्लेंडिंग एंड थर्ड इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेल में क्या मिलेगा, तो देखो किस तरह से करना है। इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, सपोज दैट दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब अपन ब्लू में लेते हैं, दिस इज द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में इसको अगर सेंट्रीफ्यूज कर लिया, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा, ये जो बैक्टीरियल सेल है इट इज हेवियर एंड दैट्स व्हाई ये बैक्टीरियल सेल बॉटम में कलेक्ट होंगे। कहां पे कलेक्ट होंगे, बॉटम में। और जो लाइटर पार्ट है, लाइटर पार्ट में क्या आएगा, ये जो प्रोटीन कोड्स है, ये प्रोटीन कोड्स कहां पे आएंगे, लाइटर पार्ट में आएंगे। तो देखो जब इन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया, दे ऑब्जर्व दैट ये जो सेल्स है, सेल्स में रेडियो एक्टिविटी एब्सेंट है। जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उन्होंने क्या पाया, ये सेल्स कहां कलेक्ट होंगे, बॉटम को। ओके, ये जो बॉटम को कलेक्ट हुए जो सेल्स है उसमें क्या एब्सेंट है, रेडियो एक्टिविटी एब्सेंट है। लेकिन जो सुपरनेटेंट फॉर्म हुआ, जो अपर पार्ट है, लाइटर पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। ये जो सुपरनेटेंट उनको मिला, बट दिस सुपरनेटेंट कंटेन रेडियो एक्टिविटी। ये जो सुपरनेटेंट है, दिस सुपरनेटेंट शोड दी एक्टिविटी। एक्टिविटी कहां पे मिली, सुपरनेटेंट में। सेल में एक्टिविटी मिली क्या, नहीं। देखो ये सेल कैसे किस तरह से रहेंगी, ये अंदर जाने के बाद इस तरह से रहेगा सेल। ओके, अब देखो इनको रिजल्ट्स क्या मिले। दे ऑब्जर्व सेल में रेडियो एक्टिविटी, किसकी रेडियो एक्टिविटी है सेल में, ये जो रेडियो एक्टिविटी है कहां पे मिलेंगे, सुपरनेटेंट में। रेडियो एक्टिविटी Yas-35 प्रेजेंट इन सुपरनेटेंट। कहां पे रेडियो एक्टिविटी मिली, सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी मिली। कहां पे रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, नो रेडियो एक्टिविटी इन सेल्स में उनको रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। अब देखो ये जो ऑब्जर्वेशन है, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल रहता, कंसीडर दिस थिंग, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल रहता तो प्रोटीन किस में जाता, ये सेल में जाता। अगर प्रोटीन सेल में एंटर होता तो प्रोटीन कहां मिलना चाहिए था, ये बॉटम में मिलना चाहिए था। और ये जो डीएनए कहां मिलना चाहिए था, सुपरनेटेंट में। लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये जो प्रोटीन्स है रेड कलर, प्रोटीन्स कहां पे मिले, सुपरनेटेंट में। और सेल में क्या मिला, नॉन रेडियो एक्टिविटी मिली। इसका मतलब नॉन रेडियो एक्टिव कौन सा पार्ट था, इसका डीएनए था। इसका मतलब ये प्रोटीन इंसर्ट हुआ क्या, बैक्टीरियल सेल में नहीं हुआ। जो इंसर्ट हुआ पार्ट है दैट इज द डीएनए।
ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उनको कंफर्म करना था डीएनए ही है, तो उन्होंने ये जो सेकंड टाइप के बैक्टीरियोफेजेस डिजाइन किए थे उसको कंसीडर किया। अब देखो प्रोसेस आर द सेम, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहली स्टेप, इसका इन्फेक्शन कॉज करना है। किसको कॉज करोगे? बैक्टीरियल सेल को। क्यों बैक्टीरियल सेल ही लेना है? बिकॉज दे आर दी बैक्टीरियोफेजेस एंड यू नो दैट बैक्टीरियोफेजेस आर दी वायरसेस इन्फेक्टिंग दी बैक्टीरियल सेल। ये एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन कॉज करना है, इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है? ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को इसको अटैच कर देना है। हो गया अटैच। अटैच होने के बाद इसमें रेडियोएक्टिव पार्ट कौन सा है? डीएनए रेडियोएक्टिव है और प्रोटीन नॉन रेडियोएक्टिव है। ये जो रेडियोएक्टिव डीएनए है यहां पे गया। ओके, दिस इज द इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेप इज द ब्लेंडिंग। इसका ब्लेंडिंग करने के बाद ये डीएनए अंदर गया, ये सेपरेट हो गए यहां से। दीज आर दी वायरस पार्ट, वायरस प्रोटीन कोड, ये सेपरेट हो गया। इधर का भी ये प्रोटीन कोड क्या हो गया? सेपरेट हो गया। कहां से सेपरेट हो गया? सेल से। अब देखो, अब इसके अंदर क्या गया? जो मटेरियल इंसर्ट किया था वो रेडियोएक्टिव डीएनए था। ये जो डीएनए है, डीएनए इस तरह से इसमें जाएगा और इसका भी डीएनए इसमें एंटर हुआ है। ये जो डीएनए है इसका डीएनए। ओके, सेकंड मेथड इज द ब्लेंडिंग एंड द लास्ट मेथड इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। अब लास्ट मेथड में सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करना है? ये जो सेल्स है उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, ये जो मटेरियल है उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देखो रिजल्ट्स किस तरह से मिलना चाहिए कि वह किस तरह से रिजल्ट्स इनको ऑब्जर्व हुआ। ये टेस्ट ट्यूब है। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो सेल्स है, सेल्स बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे और जो लाइटर पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सुपरनेटेंट। अब देखो यहां पर ये सेल आ गए। जब उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया, दे ऑब्जर्व दैट these cells showed the रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कहां पे मिली? सेल्स पे मिली। देखो ये देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। अभी एक सेल्स ले ली, नेक्स्ट सेल। दे ऑब्जर्व द रेडियो एक्टिविटी इन द सेल। ये जो सेल है, सेल में उनको क्या मिली? रेडियो एक्टिविटी मिली। और ये जो सुपरनेटेंट है, दिस सुपरनेटेंट में उनको रेडियो एक्टिविटी एब्सेंट मिली। रेडियो एक्टिविटी कहां पे एब्सेंट है? सुपरनेटेंट में। और कहां पे प्रेजेंट है? सेल में प्रेजेंट है। अब लिखता हूं यहां पर मैं उसको, नो रेडियो एक्टिविटी present in supernatant but रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये रेडियो एक्टिविटी P32 की होंगी या S35 की होंगी? ये डीएनए की, इसलिए कौन सी होंगी? P32 की। रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट और ऑब्जर्व्ड इन सेल्स। गॉट इट? इनको जो रेडियो एक्टिविटी मिली, किस में मिली? सेल्स में रेडियो एक्टिविटी मिली। कहां पे मिली नहीं? सुपरनेटेंट में मिली नहीं। बैक्टीरियोफेजेस से ये बैक्टीरियल सेल में क्या इंसर्ट हुआ होगा? डीएनए इंसर्ट हुआ होगा। इसलिए जो रेडियो एक्टिविटी है P32 है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, वो कहां ऑब्जर्व हुआ? सेल्स में। जो पिलेट फॉर्म हो गया, नीचे का पार्ट फॉर्म हो गया। और ये जो प्रोटीन कोड्स है ये कहां गए? सुपरनेटेंट में गए। इसलिए सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी इज एब्सेंट। एंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया, ये कंफर्म हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। गॉट इट? देखो, हर्शे एंड चेज
confirmed that DNA is the genetic material by performing an experiment using bacteriophages and radioactive sulfur and radioactive phosphorus. First point. DNA contains phosphorus but not sulfur, and proteins contain sulfur but not phosphorus. They allowed bacteriophages to infect the bacterial cell grown in a radioactive sulfur containing medium in one plate, and some bacteriophages allowed to infect bacterial cell grown in radioactive phosphorus containing medium. After that, they isolated the bacteriophages from respective plates. In one type of bacteriophages, protein coat is radioactive and DNA is non-radioactive. In another bacteriophage, protein coat is non-radioactive and DNA is radioactive. When they infect bacteriophages in which radioactive present in protein coat, they observed that radioactivity present in supernatant and radioactivity absent in cell. But when they infect bacteriophages containing radioactive DNA, they observed that radioactivity present in the cell and radioactivity absent in supernatant. From this, they confirm that DNA is the genetic material which is transferred from bacteriophages to the bacterial cell. This is the information regarding Hershey and Chase experiment which confirmed that DNA is the genetic material.